So, good morning and welcome to another edition of Karma Yogi Talks. And this particular one, I'm very thrilled because I have today Mrs. Vandita Kaul, a 1989 batch officer of the Indian Postal Service, who's currently Secretary, Department of Posts, Ministry of Communications. She has a master's in zoology and a diploma in systems management, and she has led key policy interventions across postal, financial, and social sectors. Her role spanned drafting legal reforms, steering COVID-related insurance schemes, and developing e-governance platforms. She has also served on the boards of major banks and insurance bodies and contributed to bilateral and multilateral initiatives in environment, disability, and financial services. So she's really been in so many different parts, and she's bringing all of that skill to the Indian Postal Service, which is going to be one of the critical elements of Viksit Bharat 2047. So we are very thrilled to have you here, madam. And I am only going to introduce you and Disha. So Disha, and then she will take over. So I want to introduce Disha, who's going to be involved in the conversation with madam. She is an Indian. Disha Pannu is an officer of the Indian Postal Service 2010 batch. And she has worked in many different areas, including core banking systems, postal life insurance, rural ICT, etc. She's also served in the Army Postal Service. She was also Deputy Director at Labasta, which is the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. And she is now Director Training at the Postal Directorate. And I just want to point out that as Director of Training, the Postal Service has done a phenomenal job in all the training and capacity building of Postal Service employees using iGOT and many other tools. So I thought it would be great to hear from Madam in a conversation with Disha about her views about where the Postal Service is going, the priorities, and her own career. So with that, Disha, it's over to you. Thank you so much, sir. Thank you so much for the generous introduction also. And welcome, Vandita ma'am. Thank you so much for joining us in this Karma Yogi Talks, ma'am. Thank so, you. ma'am, I'll start my conversation. I'm sure लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं इंडिया पोस्ट के बारे में. तो I'll begin with a very basic question, ma'am. सबसे पहले तो we would like to know कि आपने 1989 में, as we all know, as a probationer service join की थी. और आज आप उसी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं. इन 36 इयर्स में आपके अकॉर्डिंगली इंडिया पोस्ट में सबसे बड़ा चेंज आपने क्या देखा और आपको क्या लगता है कि वो सबसे बड़ा चेंज रहा आपके 36 इयर्स ऑफ करियर में? इस करियर में जो 36 साल से ज्यादा हो गए, जो बदलाव है सबसे बड़ा है कि जो हमारा सोचने का तरीका कि क्या हम हमारे लिए जरूरी है, उसमें बदलाव आया है. सबसे पहले जब हम लोग आए थे तो चिट्ठियां जो थी वही राज करती थी. There were millions of letters and our job was primarily delivering mail. उस समय भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक बहुत ज्यादा जरूरी था, आज भी उतना ही जरूरी है. हाँ, वो एक बदलाव नहीं आया है. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक जो वित्त मंत्रालय की स्कीम है वो वहीं की वहीं है. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस उस समय काफी रिस्ट्रिक्टेड था, जो हम एक सेवा देते हैं, जीवन बीमा करते हैं. इस समय वो ग्रेजुएट्स के लिए खुल गया है और बहुत खुल चुका है. उस समय बहुत सीमित था, तो वहां बहुत बड़ा. उस समय हमारे पास कोई कुरियर जैसी सर्विस सेवा नहीं थी. जब मैं सर्विस में आई थी तो जस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी और ज्यादा इलाकों में नहीं थी, कुछ पॉइंट्स पे थी, जिसको आज हम लोग शान से हमारे जो स्पीड पोस्ट है वो बहुत अच्छी सर्विस है, वो एक नई आई है. और चिट्ठी जो नॉर्मल हम आप लिखते हैं, दुख की बात है, पर वो कम हो गई है. आपस का कम्युनिकेशन अब अलग तरह से होता है, जैसे सबको पता है. लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव इस वक्त है, जो पार्सल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो ई कॉमर्स की वजह से और जो ग्रोथ है, जो सामान ऊपर नीचे हो रहा है और जो ग्रामीण इलाकों में बदलाव आ रहा है, डेवलपमेंट, विकास आ रहा है, जो नीतियां हैं सरकार की, उसकी वजह से, उससे विकास का जो झुकाव है ग्रामीण इलाकों की तरफ चला गया है. उससे हमारा जो महत्व है डिपार्टमेंट का, डाक विभाग का, बहुत ज्यादा बढ़ गया है.
और हर प्रकार के कार्य हम कर रहे हैं जो हम कभी नहीं करते थे। हमने तब सोचा भी नहीं था कि हम सिर्फ पासपोर्ट बांटेंगे नहीं, हम पासपोर्ट बनवाएंगे। तो डाक जो हमारे केंद्र हैं, हमारे 85% जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो और लोगों के नहीं, हमारे यहाँ है। 15% और चलाए जाते हैं जो है एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस तरह के कार्य, आधार तो तब था नहीं जब हम आए थे, तो वो नई चीज हमने बहुत उसका विस्तार करवाया है। और जो मूल्य है, लेकिन जो डाक सेवा, जन सेवा का मूल्य जो हम अब बोलते हैं, वो हमेशा से हम हमारे अंदर जो सेवा का भाव है वो है। हाँ, बहुत सीखना हमको पड़ा है और हम सीख रहे हैं, और बदलाव आ रहा है प्रोफेशनलिज्म की तरफ, वो बदलाव है। और मेरे खुद के अंदर भी वो बदलाव है। जब आई थी तो नौसिखिया जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं पता था, बस भावना अच्छी थी, तो अभी तक उसी पे चल रही हूँ। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मैम इन दिनों एज वी ऑल अंडरस्टैंड IT2 प्रोजेक्ट, जिसे हम ऐप भी कह रहे हैं, एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके पर्सपेक्टिव से मैम, अब तक टेक्नोलॉजी ने इंडिया पोस्ट के डेवलपमेंट को कैसे शेप किया है और फ्यूचर में ये किस तरह से और चेंजेस ला सकता है? बेसिकली IT2 प्रोजेक्ट अगर हम कहें तो डिपार्टमेंट और सिटीजन्स दोनों के लिए ही गेम चेंजर कैसे बन सकता है मैम? जो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी है, वो उसका जो विस्तार जैसे देश में हुआ है वैसे ही हमारे यहाँ हुआ है। सबसे पहले जब मैं एक बहुत ही यंग ऑफिसर थी, ये 1992 की बात है, उस समय सबसे पहले स्टैंड अलोन मशीन्स आई थी, मल्टीपर्पज काउंटर मशीन्स बोलते थे। और उस समय जो हमारा स्टाफ था, उनको हमने, जैसे ट्रेनिंग पे हमारा जोर अभी है वही था, लेकिन डर बहुत था लोगों में, क्योंकि पहली बार कंप्यूटर देख रहे थे, हाथ लगाना तो बात की बात है। तो वो डर, और एक डर कि मशीन जो है वो इंसान को गायब कर देगी और हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी, वो डर बहुत था उस समय। अब लोगों को समझ में आया कि मशीन के साथ इंसान की जरूरत, और खासतौर डाक विभाग में, बहुत ज्यादा है। तो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हमारे यहाँ हर स्टेज पे बहुत अच्छा हुआ है, और हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेनिंग की वजह से ही आगे बढ़ पाया। जो IT 1.0 प्रोजेक्ट था, उसमें सबसे पहले एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आया था, लेकिन जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन था वो सोफिस्टिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से था कि उतना हाई लेवल नहीं था। ट्रैकिंग हमने देने शुरू कर दिया था और अभी तक देते हैं। लेकिन जो IT 2.0 है, उसका नाम एक्टली यानी कि सही एक्ट है, वो एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी। इसमें आपको रियल टाइम ट्रैकिंग आपकी मेल की मिल जाएगी। हम हर चिट्ठी, हर बैग, हर ट्रांजैक्शन का हिसाब इसी रियल टाइम में कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिजिनस हमारे डाक विभाग के लोगों ने ये प्रोजेक्ट खुद किया है। इस समय रोल आउट चल रहा है और वो बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, और 22 जुलाई को और बाकी दफ्तरों में होके और 5 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमारे सारे सिस्टम्स, यानी कि जो हमारे डाक और पार्सल के सिस्टम्स हैं, जिससे हम बहुत सारी बिजनेस ले पाएंगे ई कॉमर्स कंपनी से। दूसरा हो गया हमारे जो और सेवाएं हैं, जैसे कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज वगैरह, उसमें सुविधा होगी। पब्लिक के लिए अच्छे एप्स और इंटरफेसेस अच्छे आएंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के अलग है जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोर बैंकिंग होता है, कोर इंश्योरेंस, उसका भी जो पैसा कलेक्ट होता है उसकी अकाउंटिंग एक जगह है। HR के एंगल से जो बहुत जरूरी है आज की बात में, हमारा सारे स्टाफ का डेटा, उनकी कितनी ट्रेनिंग होगी, होनी है, हो चुकी है, उनके सारे प्रोफाइल्स हमारे पास रहेंगे। ये लेयर अभी बिल्ड हो रही है, ऊपर की लेयर, क्योंकि कोर हमारा जो है मेल ट्रांसमिशन और उस पर फोकस है। कुछ महीने के अंदर उसका पूरा फायदा हमको मिलेगा और हमें पता चलेगा ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस के लिए क्या मिल सकता है। हम इसमें बहुत ज्यादा ऊपर की एनालिटिक्स लेयर्स डाल के, और हर एम्प्लॉय को जो उसको जिस समय ट्रेनिंग चाहिए दे पाएंगे। जबकि हमारा इस वक्त कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ जो हमारा साझा काम चल रहा है, उसमें बहुत बहुत जबरदस्त रीच है, लेकिन रीच के अलावा किसको कब क्या चाहिए वो प्लानिंग हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, और पब्लिक को बहुत फायदा है, हमारे एम्प्लॉयज को बहुत फायदा है। जी मैम, थैंक यू मैम।
तो मैम वैसे तो आपने ट्रेनिंग को ऑलमोस्ट टच किया अपने इस पिछले रिस्पॉन्स में, बट फिर भी मैम आई थिंक एवरीबॉडी वुड लव टू नो कि इस पूरे IT2 प्रोजेक्ट के चलते हुए वी ऑल अंडरस्टैंड कि बहुत सारे चेंजेस हम ला रहे हैं अपने फील्ड में, तो जाहिर है कि एम्प्लॉइज को उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। फील्ड लेवल के एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और उन्हें कैसा, उनका जो काम करने का तरीका है उसमें क्या बदलाव आएंगे। तो मैम उनके लिए हम लोग ऐसा क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, उनको हम चेंज के लिए कैसे रेडी कर रहे हैं फील्ड में, अगर उसके बारे में। बदलाव है वो बहुत बड़ा बदलाव है, और उसके लिए जैसे IT 1.0 में हमने किया था चेंज मैनेजमेंट का, उससे कहीं ज्यादा अधिक ट्रेनिंग इस समय हम दे रहे हैं और अच्छे तरीके से। हमारे जो फील्ड स्तर पे कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको हम न केवल iGOT और डाक कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके अलावा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। और इसमें हमने क्या किया है कि एक व्यवस्था है जिसमें जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी है, वहां के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया है, और वो आगे उन्होंने क्षेत्र विशेष जो ट्रेनर हैं जो हर एरिया के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, यूजर चैंपियंस, उनको प्रशिक्षित किया है, उनको ट्रेनिंग दी है। और जो सर्वर्स होते हैं उसके थ्रू उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। और क्योंकि इस वक्त हमारे गांव में हर एम्प्लॉय के पास, हमारे हर पोस्टमैन के पास हैंड हेल्ड मोबाइल बेस्ड डिवाइसेस हैं जिससे वो सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उनको वो डिवाइस पर प्रैक्टिस करवाते हैं। और जो रोल आउट हो रहा है उसके 1 दिन 2 दिन पहले भी उनको फिर से ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो कुछ भूल गए हो तो वो उस समय गलती ना हो। और उस वजह से पूरा कर्नाटक का सर्कल रोल आउट हो चुका है, और अन्य 9 सर्कल्स में इस वक्त बहुत सारे दफ्तर रोल आउट हो गए। और सबसे अच्छी खबर यह है कि हमारे एम्प्लॉइज बहुत खुश हैं इस सॉफ्टवेयर से, और ट्रेनिंग होने की वजह से सही तरीके की नीचे वाटरफॉल टाइप से नीचे तक पहुंचा के ट्रेनिंग हमने उनको पूरा सुदृढ़ कर दिया है, वो अच्छी तरह सेवा दे पा रहे हैं। जी तो मैम ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर मैं पूछूं तो हम सब जानते हैं कि मिशन कर्मयोगी लर्निंग कल्चर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आया है, और ट्रेनिंग को लेकर हमारे सोचने के तरीके को भी इसने बदला है। आपने भी एज DDG ट्रेनिंग काम किया है इसी डायरेक्टरेट में मैम, और हम सब जानते हैं कि आप ट्रेनिंग को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप मिशन कर्मयोगी को इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं मैम, उसके इंपॉर्टेंस को आप कैसे समझते हैं? जैसे आपने कहा दिशा, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण में सुधार नहीं है, जो इसका नाम है उसको भी अगर हम देखें मिशन कर्मयोगी, तो मतलब आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप यहाँ पे ड्यूटी करने आए हैं। आप अपने कर्म जो आपको हमेशा उसका निर्वाह करना है, उसके आप योगी हैं। मतलब एक बहुत बड़ी सोच है इसके पीछे, और ये सोच में बदलाव है। तो इसमें सेवा की भावना आती है और अपने आप को मजबूत बनाने की आती है, जो योग से होता है। तो पारंपरिक प्रशिक्षण की परिभाषा से कहीं आगे हम चले गए, और निरंतर विकास, तो हमारा जो अपना विकास है वो निरंतर हो, और परिवर्तन के लिए हम हमेशा तैयार रहें, क्योंकि समय परिवर्तन का है, बहुत जल्दी परिवर्तन आ रहा है। तो तेज बदलती हुई दुनिया में हम खड़े रहें और हमेशा सतर्क हो, और कार्य हम अच्छी तरह कर पाए, और एक योगी की एक पूरे फोकस से हम उस भावना से काम करें। DDG ट्रेनिंग जब मैं थी तो मैं लकी थी कि उस समय IT 1.0 चल रहा था, और उस समय बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। तो वो मैंने खुद अनुभव किया, और सारी जो टीम्स थी उनके साथ हमारा रेगुलर चेंज मैनेजमेंट का चलता था। एक होता है हिस्सा उसका ट्रेनिंग होना दूसरों की, और फिर खुद भी हम लोग उस पर ट्राई करके देखते थे। जब फील्ड में भी गए तो सॉफ्टवेयर साथ बैठ के हम चला के देखते थे, अच्छा इसमें ऐसे चल रहा है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का नया आया। जब तक कि हम साथ अपने लोगों के बैठते नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जैसे पहली बार मल्टीपर्पज काउंटर मशीन लगी तो मेरे स्टाफ ने कहा मैम हम ट्रेन तो हो गए, हमें डर लग रहा है, आप हमारे पीछे बैठ जाइए। मैं पूरे डिवीजन की इंचार्ज थी, एक डाक खाने में बोले मुझे 1 महीने आप पीछे बैठिए। एक्चुअली एक दिन बैठना नहीं पड़ा, पर उनको मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। पीछे बैठे, वो काम कर रहा है, पीछे देख रहा है। तो ये सब उसके लिए हमें साथ मिलके खुद समझ के उनकी तकलीफ को सुन के और आगे उसको
ठीक करना पड़ता है ऑन द स्पॉट। दूसरी क्योंकि जो साइकोलॉजिकल पार्ट है ट्रेनिंग में, कॉन्फिडेंस आना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और टीम वर्क भी सीखते हैं हम ट्रेनिंग में। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इस प्रशिक्षण की वजह से जो भारतीय डाक विभाग के लिए सरकार ने सोचा है कि हम रूरल एरिया में कैटलिस्ट होंगे फॉर डेवलपमेंट। तो जिसको उत्प्रेरक कहते हैं, जो एक प्रेरक तत्व है, कैटलिस्ट, जब रिएक्शन होता है दो केमिकल्स मिलके और एक नई चीज बनती है ट्रांसफॉर्मेशन में, उस नए रूप को बनाने के लिए हमारा काम है। तो हमारे लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, और वो ज्यादा लचीले, उत्तरदायी, सक्षम, ये शब्द मैं कहूंगी, और उनको हमेशा याद रखना है कि हम सेवा के लिए बैठे हैं और प्रोफेशनल्स हैं। तो ये चीज हम सबके अंदर, ये कार्य करने की संस्कृति जो है उसका विकास कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी वजह से हम हर रोज देश की पूरी तरह से सेवा कर पाएंगे, और देश को आगे ले जाने में हमारा बहुत बड़ा रोल हो सकता है डिपार्टमेंट का, और है, और ज्यादा बढ़ेगा। जी मैम। तो मैम, जैसे आपने देश सेवा के बारे में कहा, तो उसी से रिलेटेड इफ आई वुड आस्क कि जैसा हम सब जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि इनफैक्ट एनआरआईज को भी वो विकसित भारत 2047 के विजन में भाग लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली मैम, इस विजन में इंडिया पोस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट या प्रभावशाली भूमिका ऐसी क्या हो सकती है मैम, और इंडिया पोस्ट के लिए 2047 का विजन क्या है? जो विजन विकसित भारत 2047 का है, वो पूरी तरह हमारी जो सोच है विभाग की, हमेशा से हमारे विजन से इसका बहुत अच्छा मैच है। और जहाँ के तक सवाल है कि पूरे विश्व में जो हमारा जुड़ाव हम देते हैं, वो हम जो सेतु का काम करते हैं हमारे लोगों के बीच में, देशवासियों के अंदर जो है देश में और बाहर है, जो पार्सल जाते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट्स हम बोलते हैं, उसके लिए हम सुविधा आसान कर देते हैं, आसान हो गई है, रेट हम कम रखते हैं ताकि वहां दिक्कत नहीं हो। दूसरे एंड की कंट्रीज से हमारी बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हमने डेवलप किए। इसी वर्ष में यूनाइटेड स्टेट्स की पोस्टल सर्विस से हमारा नया टाई अप हुआ है। तो इस तरह से हम देश और विदेश में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको सेवा देते हैं। और जो 2047 का जो लक्ष्य है उसमें हम आर्थिक और डिजिटल सेवाओं के ऊपर खास हमने जोर दिया है, और जमीनी स्तर तक लोगों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने हमको कहा कि जहां बैंक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि बैंक फुल बैंकिंग जहां पे आप क्रेडिट भी देते हैं डायरेक्टली, तो वहां पोस्ट ऑफिस जाके और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की फैसिलिटीज के अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो एक नया पेमेंट्स बैंक है उसके साथ जुड़ के, और डिजिटल, एक फुल्ली डिजिटल बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, उसके थ्रू दूसरों का क्रेडिट एनेबल करें। कोई बैंक अगर क्रेडिट दे रहा है तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ग्रामीण इलाकों में जिसको भी क्रेडिट चाहिए, और उनका जो सामान जाना है देश में विदेश में, उसमें पार्सल में उनको हेल्प करना, अगर उनको विदेश भेजना है निर्यात के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होल्ड में मदद करना, और डाक निर्यात केंद्र के जरिए हम बाहर भी सामान उनका भेजते हैं। और कस्टम से इस वक्त हमारे बैक एंड पोर्टल इंटीग्रेशन वगैरह का काम चल रहा है। इसके साथ ही हम लोग राष्ट्र के अंदर डेवलपमेंट और राष्ट्र से बाहर जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसको भी एनकरेज करें। जी मैम। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि इंटरनेशनल को भी हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी एक हम लोग को एक एम मिला हुआ है कि करना है, हम लोगों ने पहुंचना है इंडिया ने वहां तक। और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका भी विजन है कि इंडिया पोस्ट को एक प्रॉफिट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाए। तो उसी से रिलेटेड आई वुड आस्क मैम, उस डायरेक्शन में हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, और इस विजन को पूरा करने के लिए हम कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं? तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जो लाभ की बात करते हैं, इससे ये कभी ना सोचा जाए कि हम लाभ केंद्रित हैं। लाभ बुरी बात नहीं होती है, पर वो किसी भी सोशल ऑब्जेक्टिव जो ग्रामीण इलाकों को हम सेवा दे रहे हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं होता। ये विभाग ये कर रहा है कि
अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करना है, यानी कि जो हमारा लॉजिस्टिक्स का जो पूरा सेटअप है, जो पाइपलाइन है, उसके लिए इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में बोला कि इंडिया पोस्ट को एक पब्लिक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक की सेवा के लिए बैकबोन हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करके और हमारे जरिए आसानी से लोग सामान भेज पाए। और क्योंकि एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, अगर हम ज्यादा सामान भेजेंगे, उसी स्टाफ को रिट्रेन करके, उनको नई चीजें सिखा के और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने से हमारा डिपार्टमेंट स्ट्रांग होता है तो कंट्री स्ट्रांग होती है। हम सबको जोड़ देंगे, लाभ हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, फाइनेंशियली भी, जो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पब्लिक से कोई नुकसान नहीं होगा। रेट्स हमने इसकी वजह से बढ़ाते हैं, और जो हम ज्यादा एफिशिएंट होंगे, प्रोफेशनल होंगे, डिजिटल होंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो उससे हम नई दुनिया के हिसाब से चलेंगे और हमारे ग्राहक के दृष्टिकोण से हमारी सोच जो है और ज्यादा उनकी ओर जा रही है कि उनको कैसे हम अच्छी सेवाएं दें और जो उनकी वास्तविक आवश्यकता है, जो उनको चाहिए, वो हमें बता पाए। और हम डिजिटल उपकरण, बेहतर लॉजिस्टिक्स और उच्चतरण वितरण मानक यानी कि डिलीवरी नॉर्म्स वगैरह पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। तो पूरे सिस्टम को समझ के और कैसे हम देश का भला हो, वित्त के हिसाब से भी कोई नुकसानदायक हम नहीं होना चाहते। हाँ, जो मापदंड है वही है, डाकघर हम खोलते हैं नॉन लॉस पे कि हम इसमें नहीं कमाएंगे, लेकिन हम दूसरी सर्विसेज से कमाएंगे और हर गांव के आदमी को पूरी सेवा मिलेगी और हर शहर के आदमी को भी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमारे मंत्री जी के साथ हमने करी, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। जी, थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आज क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा सुन रहे हैं प्रॉफिट सेंट्रिसिटी, बट आई थिंक आपके इस रिस्पॉन्स से बहुत लोगों को समझ में आया होगा कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जो सर्विस फॉर पीपल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इस पूरे एम का। तो मैम ये तो रहा बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट से रिलेटेड बातचीत, पर अब थोड़ा सा आई वुड लव टू आस्क समथिंग अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपने अपने करियर में बहुत सारे रोल्स निभाए हैं मैम, पर कभी कोई ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि शायद मुझे कोई और करियर चुनना चाहिए था, कुछ दूसरा किसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए था, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो मैम? हाँ, तो देखिए, जिस समय मैं सर्विस में आई थी तो उस समय एक 7% महिलाएं थी इन सर्विसेज में, सिर्फ 7%। हमारे बैच में 10% थी। तो मैं नहीं कहूंगी कि महिला होने से कभी मुझे नहीं लगा मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हुआ। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि बोझ, घर का बोझ, जिम्मेदारियां, बच्चे, वो बोझ आज भी महिला पर ज्यादा है, तो वो वाला बोझ है। हाँ, बिल्कुल शुरू में जब मेरा बच्चा कुछ महीने का था, तो मैं जब 5 या 6 घंटे कम्यूट के बाद दोनों टाइम आना जाना मिला के घर आती थी, तो मेरे आंसू निकल जाते थे। सच बात है कि मेरा बच्चा निगलेक्ट हो रहा है। उस समय मुझे लगा मैं नौकरी छोड़ दूं, जो मैंने गलती नहीं की, क्योंकि मेरे घर से सपोर्ट थी। तो ये सबसे जरूरी है कि इस तरह के सेंसिटिव टाइम में विमेन ऑफिसर्स, विमेन स्टाफ, हमें उसके लिए सेंसिटिव रहना है। यानी कि ना, एक कमजोर है इसलिए ये ऐसा सोच रही है, वो मजबूत है, उसके कंधों पे 10 चीजों का बोझ है, तो उसको या तो बोझ हल्का करना है या गवर्नमेंट से सपोर्ट देनी है। तो गवर्नमेंट ने भी जो सपोर्ट है वो बहुत बढ़ाई है। तो वो एक एज अ वुमन, बट फॉर माई वर्क आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मुझे पता भी नहीं था मैं जब नौकरी में आई कि एम आई फिट फॉर पब्लिक सर्विस, डू आई नो इनफ? नो, आई डिडंट नो इनफ, आई स्टिल डोंट नो इनफ, आई एम स्टिल लर्निंग। तो वो जो सीखने का है, मेरे ख्याल में मेरे अंदर अच्छा जज्बा है। So I have learned happily, I have enjoyed learning new things. That's why you find मैंने बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया। तो कभी बदलाव से डरना नहीं है, ये मैंने सीखा है। बदलाव बहुत अच्छा होता है, उससे कभी भी जिसको बोरियत बोलते हैं वो नहीं आती, बहुत मजा आता है काम करने। तो आज भी मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये यंग ऑफिसर्स आते हैं, नई नई तकनीक हम लोग ला रहे हैं, डिजिटल एड्रेस कोड हम बना रहे हैं, डिजिपिन।
तो समझती हूँ, फिर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, फिर बुलाती हूँ, फिर से सिखाओ। तो ट्रेनिंग की ये सबसे बड़ी चीज है कि नहीं समझ आया पूछो, दोबारा सीखो जब तक अंदर बैठ नहीं जाए। तो वो मैं आज भी कर रही हूँ। तो स्टूडेंट रही हूँ मैं पूरी लाइफ, और मुझे कभी नहीं लगा कि नौकरी छोड़ दो। सिर्फ वो शुरू में मुझे कोई 15 दिन में ऑलमोस्ट छोड़ने की कगार पे थी, बिल्कुल। तो मुझे कोई मेरे पास आता है और अपनी तकलीफ बताता है कि मुझे, और सिर्फ विमेन नहीं, मैन ऑल्सो, किसी की वाइफ भी वर्किंग है, किसी के घर में बच्चे की कोई इशू है, आई ऑलवेज से ये वक्त भी निकल जाएगा, घबराओ मत, बदलाव का टाइम है, हमेशा बदलता है, मजबूती रखो, पार कर जाएंगे। तो वही उसी मजबूती से हम इस वक्त भी डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बदलाव के अंदर चल रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोग मजबूती से खड़े और कर पा रहे। तो वही सबसे जरूरी है, अडिग रहना जरूरी है, डरना नहीं। यही मैंने सीखा है जिंदगी में। जी मैम, इनफैक्ट मैम इसी से इफ आई कैन मेंशन कि हम सब जानते हैं कि आप बहुत ही कंपैशनेट लीडर हैं, बहुत ही सहजता से मिलने वाली लीडर हैं सबको, और हो सकता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा हो जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपने हम सबके साथ अभी शेयर किया। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा कौन सा मार्गदर्शक या ऐसा कौन सा मेंटर रहा या रहे जिन्होंने आपकी लीडरशिप जर्नी को शेप किया मैम, और उनके ऐसे कौन से कुछ लेसन्स होंगे जो आज भी आपके लीडरशिप स्टाइल में झलकते हैं? अब सबसे पहले तो मेरे ख्याल है जो सबसे पहले मार्गदर्शक होते हैं पेरेंट्स, आई शुड नॉट से, बट जो हम सीखते हैं बचपन से वो इंग्रेन होता है। फिर हमारे ट्रेनर्स बहुत अच्छे थे। यही कमरा जिसमें मैं बैठती हूँ आज, यही हमारा ट्रेनिंग रूम था, तब हमारी अकेडमी बन रही थी। तो यहाँ पे ही इसी कमरे में मैं जो बैठी हूँ, तो मुझे एक महसूस होती है एक प्रेजेंस अपने ट्रेनर्स की। दो जो हमारे मेन ट्रेनर्स हैं रहे ही नहीं, मिस्टर एस रॉय थे, मिस्टर वीर दत्त होते थे। इतना अच्छा सिखाया उन्होंने, और वो अंदर जो जज्बा होता है ना सेवा का, उन लोगों ने डाला है और प्रोफेशनल भी बनाया है। तो बहुत फर्क पड़ता है ट्रेनर्स। सो आई वुड से माय पेरेंट्स, माय ट्रेनर्स, एंड देन द पीपल इन द फील्ड। जब आप वहां जाते हैं और आप जाके मिलते हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट फील होती है। वो गांव में इंटीरियर में पत्थर पहाड़ के अंदर बारिश में चल रहा है, तो हम क्या चीज है कि हम लोग एटीट्यूड दिखाएं। सो आई थिंक आई हैव लर्नड ह्यूमिलिटी लुकिंग एट देम कि ये किस स्थिति में, परिस्थिति में काम कर रहे हैं, और हम लोग इतने आराम की जिंदगी है हमारी। तो उनसे सीखने को बहुत ज्यादा मिला, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे यही नौकरी मिली। मेरी पहली अटेम्प्ट थी सिविल सर्विसेज में, और मुझे इंडियन पोस्टल सर्विस मिली और मैंने ज्वाइन किया, और मैंने एक मिनट रिग्रेट नहीं किया। और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जब सर्व किया तो मुझे लगा मेरे विभाग ने जो मुझे सिखाया, इसलिए मैं बदलाव के लिए तैयार थी और हैंड्स ऑन करने को तैयार थी। तो ये डिपार्टमेंट हमको बहुत सिखाता है। थैंक यू मैम। मैम जैसे आपने बताया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है वन थिंग व्हिच इज वेरी कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ अस दैट आई आल्सो फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। सो उसी से रिलेटेड मैम आई वुड जस्ट आस्क कि इंडिया पोस्ट का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको पर्सनली सबसे ज्यादा प्राउड फील कराता है? बिकॉज आई कैन सी एंड वी ऑल कैन हियर दैट यू आर वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विसेज। आई एम really proud because no organization is like us in the country and in the world. क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। हम लोग हर गांव में हर व्यक्ति को, हर शहर में हर व्यक्ति को छूते हैं, चाहे उसका पार्सल हो, चिट्ठी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इंक्लूजन कर रहे हैं, वित्तीय समावेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे देशों में जब मैं जाके उन लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, हमने एशिया पैसिफिक, अफ्रीकन कंट्रीज, उनके साथ इंटरेक्ट किया, तो मेरा गर्व और बढ़ गया। मैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो 4 अलग अलग देश चीजें कर रहे हैं वो सारी हम कर रहे हैं, मतलब। और वो हमसे पूछते हैं अच्छा ये कैसे किया, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग कि वो भी उसी तरह आगे चलेंगे ना। कुछ देश हैं जिनको सीखने का की चाह है हमसे, तो हम उनको भी सिखा रहे हैं, और जब हम उनको सिखाते हैं तो हमें पता चलता है वो कोई इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं, हम वो भी सीख लेते हैं। तो ये जो खुला वातावरण इंटरैक्शन का है, वही हमें डाउन द लाइन के हमारा डाकिया है या ग्रामीण डाक सेवक है, पोस्टल असिस्टेंट है या कोई यंग ऑफिसर है, सबसे इंटरैक्शन, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, 2 वे जरूरी है।
आपस में बात करना जरूरी है, और जब वो बात करते हैं तो हर बार प्राइड बढ़ता है, चाहे वो बारिश में जा रहा है डाकिया या काउंटर के पर बैठ के अच्छे से बात कर रहा है। वो चीज है जो हमारे लिए भी चैलेंज, हमें सिखाना है, रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर। तो वो जब अच्छा करते हैं तो मुझे बहुत प्राइड होती है। तो हम इसी से रिलेटेड इफ आई कैन आस्क, बिकॉज अगेन आपकी बातों से ही निकल कर आ रहे हैं मेरे क्वेश्चंस भी। आई थिंक आप बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि निरंतर सीखने की जो चाह है, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इस बात को कि हमें हमेशा निरंतर सीखना है और कैपेसिटी बिल्डिंग को इंपॉर्टेंस देनी है। पर आपके करियर में मैम कोई ऐसा ट्रेनिंग से रिलेटेड बड़ा स्पेसिफिक सा कोई पल रहा हो जो आपको आज भी याद है और जिसने आपके पूरे पर्सपेक्टिव को बहुत गहराई से प्रभावित किया हो? सोचना पड़ेगा क्योंकि इतने लोगों ने सिखाया इतना कुछ। आई थिंक लर्निंग इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग मेरी सबसे ज्यादा एसडीडीजी ट्रेनिंग रही, क्योंकि उस समय हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को भी बिल्ड कर रहे थे, मतलब वो उसकी ट्रेनिंग उसके लिए हो रही थी। तो उस टाइम पे हमने सबसे पहले ये मास्टर ट्रेनर, यूजर चैंपियन, देन रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, ये चीजें जब हमने वहां ट्राई की और हमने फीडबैक लिया, जैसे जब जो जो चेंज था उसके चेंज मैनेजमेंट के फीडबैक थे। आई थिंक वी हैड 120 workshop, we had responses from at a time 50,000 employees। वो सारा फीडबैक को एनालाइज करना, उससे समझना कि सोच क्या है हर व्यक्ति की, और हायर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, जो डायरेक्ट फ्रंटलाइन स्टाफ है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो मुझे समझने की वजह से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। क्योंकि एज सेक्रेटरी ऑल्सो मुझे बार बार ये एहसास होता है कि ये सबसे जरूरी चीज है। एंड एज यू सेड ड्यूरिंग IIT 2.0 आई सेड वेयर इज द ट्रेनिंग पीस, वेयर इज द चेंज मैनेजमेंट पीस, वो मुझे अच्छी तरह दिखाओ, बिकॉज उसके बिना, इंसान के बिना कितनी भी तकनीक ले आओ, इंसान सही होना चाहिए ट्रेंड। तो वहां मैंने बहुत सीखा आई थिंक ऑन दिस पार्ट। जी मैम। और मैम ट्रेनिंग से हटकर अगर मैं कुछ बात करूं कि आपका इतना रिच और डाइवर्स करियर रहा है मैम, और आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी मेमोरेबल मोमेंट्स रही होंगी इन पूरे 36 इयर्स में, बट कोई ऐसा फील्ड विजिट या किसी ट्रेनी से ऐसी कोई बातचीत या किसी पोस्ट ऑफिस कर्मचारी के साथ ऐसा कोई जुड़ा हुआ पल जिसने आपको थोड़ा इमोशनली भी टच किया हो और जो आपको अभी भी याद है कि किसी ने कुछ कहा हो या कुछ किया हो जो आपको इमोशनली टच करके गया हो? आई थिंक ज्यादा रिसेंट में मैं कहूंगी हिमाचल प्रदेश में मैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल थी। तो वहां पे आपको पता है बहुत बुरा हाल हुआ था 2023 में, बहुत ज्यादा फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, एंड इट वाज सच अ बैड सिचुएशन। तो वहां मुझे लगा कि ये लोग कुछ ज्यादा ही सिंसियर हैं, ड्यूटी बाउंड हैं। तो एक एक जने से मैं जब बात कर रही थी तो मैं उनको कह रही थी कि देखिए डाक ले जाना ठीक है, हमारे लिए बहुत जरूरी, रास्ता बंद हो तो कैसे पहुंचाएं, पर और चीजों का ध्यान रख रहे हैं। मैम हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, जहां पे भी लैंडस्लाइड होती है हम उसके ऊपर से चढ़ के जाएंगे और डाक पहुंचा देंगे। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा ऐसे नहीं नहीं नहीं, शांत हुई आप। नहीं मैडम हमारी ड्यूटी है, हम तो पहुंचा के ही रहेंगे। मैंने कहा आपको जान ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, मैं आपको आदेश दे रही हूँ, आप जान पे खेल के डाक नहीं पहुंचाएंगे। जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कि हाँ रुक जाओ तो आप रुक जाएंगे, और ये नहीं करेंगे। हम तो पहाड़ी हम चढ़ जाते हैं ऊपर से, नहीं तो सबको इंस्ट्रक्शंस देने पड़े कि इतना भी जोश अच्छी चीज है लेकिन जिंदगी भी बचा लो। तो ये मुझे लगा कि ये क्या लोग हैं, हम ये क्या मतलब सोच रहे हैं, कमाल की सोच है कि ड्यूटी सबसे पहले, जान बाद में देखेंगे। तो ये मैंने नहीं देखा था कहीं, और वैसे तो बहुत इंस्पायर किया लोगों। आई वॉज वेरी टच्ड बट आई वॉज ऑल्सो फ्राइटेड। जी हाँ। तो मैम इफ आई हैव टू से दैट वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमारे डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली इतने सारे डेकेड्स में बहुत सारी चीजें बदलती देखी हैं। हम लोग एनालॉग से डिजिटल हुए हैं, मैनुअल प्रोसेसेस से हम लोग मोबाइल एप्स तक आए हैं। तो जितने भी यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, आई एम श्योर जो पुराने हैं मैम उनके लिए तो चेंज जो था एक डिफरेंट तरीके से उन्होंने प्रोसेस किया, उस पूरे चेंज को एक्सेप्ट किया।
पर जितने भी यंग रिक्रूट्स आ रहे हैं, यंग ऑफिसर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं अभी डिपार्टमेंट को, अगर उनको आप कोई सजेशन देना चाहें या कोई सलाह देना चाहें विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू टेक चेंज, आपने बहुत पॉजिटिव चीजें ऑलरेडी कह दी हैं चेंज को लेकर, बट फिर भी बड़ा स्पेसिफिक अगले 2-3 कुछ उनको अगर आप एडवाइस देना चाहें यंग ऑफिसर्स को, तो वो क्या होंगी? अब देखिए, यंग ऑफिसर्स या यंग स्टाफ जो हमारा है फील्ड में, वो चेंज की तो उनको आदत है हमसे ज्यादा, लेकिन जो चीज उनको ध्यान रखनी चाहिए, जिसका मुझे लगता है कि जो नॉलेज की डेप्थ है वो कभी नहीं छोड़नी है। अभी टूल्स हैं, एआई है, उसकी वजह से ये नहीं होने देना है कि हमारी जो कोर है नॉलेज, हैंड्स ऑन नॉलेज वी आर वेरी गुड एट, द डेप्थ ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट नहीं छूटना है। सब चीज रिलायंस टेक पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से, प्लस सपोर्ट ऑफ एआई। I mean, we have to use these tools, but they should remain tools. So I will not say कि ये लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा ये लोग चेंज करेंगे जो यंग लोग हैं, और यंग लोग ओल्डर लोगों को हमको सिखाते हैं कैसे चेंज करना है, especially when it comes to adapting to technology. So I think that worry I don't have, that they will not change. They have seen a very fast changing world, but they must know that in that fast changing world, what will matter in the end, which keeps you standing till the end, is deep knowledge and understanding of your subject, of your people, of the entire environment in which we are working. So they're very good at speaking, at communicating, at interfacing, much better than us. हम लोग बहुत reticent organization थे, नहीं सबसे बात करते, वो बस ध्यान रखना है, knowledge base नहीं erode होने देंगे, ज्ञान वृद्धि। जी मैम, एज हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट और इन डिफरेंट रोल्स आल्सो, इससे पहले भी आपने बड़ा फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक प्राउड मोमेंट आपका रहा जहां पर आप किसी ग्लोबल इवेंट में इंडिया पोस्ट के प्रोजेक्ट्स या उनके काम को वहां पर एक्नॉलेज किया गया हो और स्पेशल अप्रिसिएशन मिला हो और आपको एक्सट्रीम प्राउड फील हुआ हो टू बी लीडिंग इंडिया पोस्ट? कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? एक्चुअली तो कई मोमेंट्स हैं ऐसे, और हर बार जब आप कंट्री का फ्लैग छोटा सा लगा के या नाम लिख के बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सच बात है। और अभी रिसेंटली हम जो हमारा एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, विच इज अ यूएन बॉडी, उसके नीचे और भी यूनियंस होते हैं, जैसे एशिया पैसिफिक है, और पैन अफ्रीकन पोस्टल यूनियन ने इंडिया को, यानी कि मुझे इंडिया पोस्ट को एज द हेड बुलाया था, एज अ स्पेशल ऑब्जर्वर, which is a very rare event I have not seen before. So वो हमसे बातचीत कर रहे हैं as a union of 45 countries to have tie-ups with India Post. I think I felt very proud कि हमने इतना अच्छा काम किया है, and they are so happy to deal with us. So I think that internationally we have respect and they realize we respect them. There's a mutual respect and understanding जो बहुत जरूरी है। एक पुराना एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, जो मैं यहाँ से नहीं, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से गई थी, और वो अलग ही फोरम था, मेटी की एक लेडी गई थी और मैं गई थी। आधार के बारे में हमें एक प्रेजेंटेशन करना था, फैटेफ जो फोरम है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहां पे उसमें आधार का जब प्रेजेंटेशन मैंने कंप्लीट किया, वी एज इंडिया got a standing ovation. They were all developed countries, developing countries, and they stood up and they clapped and they clapped and they clapped. And I was almost in tears. I was so touched कि ये जो किया है आधार, उस पे जो ताली मिली है, और उसके बाद जो टी ब्रेक हुआ, I was surrounded. I felt like I'm some kind of star because they were so happy कि ऐसी चीज करी कंट्री ने. They wanted to learn, and I mean, even very advanced countries, they all came up. That was a very proud. Thank you, ma'am. So, ma'am, taking this towards conclusion, I would just like to ask कि ये also एक platform है, ma'am. यहाँ से अगर आप हमारे लाखों जो हमारे ground level employees हैं, जो हर दिन बहुत मेहनत से काम करते हैं फील्ड में,
अगर उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं या उनको कुछ कहना चाहते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, व्हाट विल दैट बी? 4 शब्दों में तो एक ही है, डाक सेवा जन सेवा सबसे पहले। और ये मैं मानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, सिर्फ स्लोगन नहीं है। और जो आप लोग सब कर रहे हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमसे हो सकेगा, डिपार्टमेंट को जो जरूरतें हैं वो हम पूरी करें। उसको देखते हुए मुझे कोई भी शक नहीं है कि ये विभाग ऐसा विभाग है कि देश को बदल सकता है, और देश नहीं दुनिया को बदल सकता है, और बदल भी रहा है। हल्के हल्के हम बदलाव ला रहे हैं, तो खुद को बदलेंगे तो हम देश को, विश्व को बदलेंगे और सही दिशा में बदलेंगे, विकास की ओर ले जाएंगे। तो मेरी यही मैसेज है कि अपना काम करते रहो पूरी निष्ठा से, चाहे इतना सा काम हो, छोटा सा काम लगे, मेरे करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है, हर व्यक्ति के काम से फर्क पड़ता है। तो जो ड्यूटी मिली है हमें उसको दिल से पूरी निष्ठा से निभाना है, बस उतना करना है। और जब हमारी ऐसी निष्ठा होगी तो हम घर में भी अच्छा कर पाएंगे, बाहर समाज में भी कर पाएंगे, क्योंकि जो कर्मयोगी होता है ना वो हर जगह कर्मयोगी होता है। तो आप लोग सब कर्मयोगी हैं और उसी से खुश रहेंगे काम करके, यही मैं कह सकती हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच मैम। एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग आज जुड़े हैं हमारे साथ कर्मयोगी टॉक्स में, उन्हें बहुत पहली बात तो क्लैरिटी भी मिली होगी कि क्या कुछ इंडिया पोस्ट कर रहा है, क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कितना डिफिकल्ट काम भी है और क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं। So thank you so much for ma'am for giving all of that clarity also and sharing so many personal moments also from your life. Thank you so much for joining today. जी मौका दिया। Thank you. थैंक यू टू द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।